پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ معزز ناظرین اور سامعین کرام، آج رات پھر خداوند کا یہ خادم آپ سبوں کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے اور تعریف کرتا ہوں اس خداوند کی جس نے اپنی محبت میں مجھے آپ کے ساتھ لپیٹا ہے تاکہ میں جب تک اس زمین پر ہوں خداوند کے آئین کو بیان کرتا رہوں اور ان کے مطابق اپنا جیون بسر کرتا چلا جاؤں۔ میری یہی دلی تمنا ہے کہ خداوند اپنی صداقت کی راہوں پر مجھے چلتے رہنے کا فضل عنایت فرمائے۔ آج ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یوں تو ایک عرصے سے ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کرتے چلے آ رہے ہیں، یا میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ زبور کی جو 5 کتب ہیں ان میں سے پہلی، دوسری اور اب تیسری کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور جس زبور پر اس وقت ہم ہیں وہ زبور 77 ہے، 77۔ اس کی آج 10 آیت سے لے کر میں آپ کی خدمت میں 15 آیت تک بات کروں گا، 10 سے 15، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ کیوں میں 10 سے 15 پر بات کروں گا۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ایک اور خدا کے خادم گزرے کل ان پہلی 10 آیات پر تو آلریڈی بات کر چکے ہیں، لیکن میں 10ویں آیت ساتھ لوں گا تاکہ میں اپنے مضمون کو اور بہتر طریقہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ یاد رہے کہ جب میں اس زبور کو دیکھ رہا تھا، 77 زبور کو، تو اس میں پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت تک ایک حصہ ہے، کیونکہ اس کے بعد پاز، وقفہ یعنی لفظ صلاح آتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی آیت سے لے کر میں 9 آیت تک دیکھتا ہوں، تو پھر 9 آیت کے آخر پر پھر سے پاز، وقفہ یعنی صلاح کا لفظ آتا ہے۔ اس لیے مجھے 10ویں آیت سے شروع کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر 10ویں آیت سے ہم 15 آیت تک جائیں تو 15 آیت کے آخر پر پھر سے لفظ صلاح یعنی وقفہ، پاز ہمیں ملتا ہے، اور پھر یہ وہ حصص ہیں جن حصص کو ہم مختلف طریقوں سے مختلف خدا کے خادموں کے وسیلہ سے سیکھیں گے۔ میں 15 تک رہوں گا، اور خداوند نے چاہا تو کل ہم ایک اور خداوند کے عظیم خادم سے یہاں سے ہی اس زبور کا مطالعہ شروع کریں گے، یعنی 16ویں آیت سے۔ یاد رہے کہ بارہا بار اس بات کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جاتا رہا، اور میں بھی بیان کروں گا، لیکن تفصیل سے نہیں، کیونکہ آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں، اور وہ یہ کہ اس زبور کا ٹائٹل ہے میرے مغنی کے لیے یدوتون کے طور پر آصف کا مزمور۔ خدا نے جس شخص کو چنا کہ وہ روح القدس کی تحریک سے اس زبور کو لکھے وہ آصف ہے۔ وہ داؤد اور سلیمان کے وقت خانہ خدا میں اور خدا کے لوگوں کی منڈلی یا مجلس یا جماعت میں کوائر لیڈر کے طور پر بھی تھا، موسیقار بھی تھا، اور پرستش بھی کرتا تھا خداوند کی، اور پوئٹری بھی کرتا تھا، شاعری بھی۔ لیکن یاد رہے
कि हमने पहले देख लिया कि ये बादशाहों के दरबार में नबुवत भी किया करता था। तो गोया इंसानी पहलू के एतबार से आसफ इस जबूर का इंसानी मुसन्नफ है। इसके अलावा हेमान भी है जिसको चुना गया, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। और जगहों पर हम देखेंगे आसफ और हेमान, इनका तवारीख की कुतुब में काफी जिक्र है, जो क्वायर डायरेक्टर या म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर, गाने वालों के तौर पर भी हम इनको देखते हैं। जब हम यदूतून की बात करते हैं, क्योंकि लिखा है यदूतून के तौर पर, तो यदूतून का हम जबूर 39 के शुरू में भी नाम देखते हैं और जबूर 62 के शुरू में भी। और आलिम लोग और मुफस्सर कहते हैं कि यह एक मौसीकार था, म्यूजिशियन था। उसके तौर पर यानी आसफ ने जैसी टून शायद यदूतून ने बनाई होगी, आसफ ने वैसा ही ये जबूर लिखा, या उसने जबूर लिखा और यदूतून ने उसकी बाद में सुर बनाई या टोन बनाई है, ये हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो, यह सब कुछ इसलिए था कि खुदा के जलाल के लिए गाया जाए, आलाते मौसीकी को बजाया जाए और खुदा के नाम की तमजीद और हमद और स्ताइश की जाए। इस पूरे जबूर में, 77 जबूर में, हम कुछ अफसोस भी देखते हैं, दुख भी देखते हैं। लेकिन इस अफसोस और इस दुख के दौरान आसफ को खुदा पर भरोसा करते हुए हम देखते हैं। और चूंकि वह खुदा पर भरोसा करता है, इसलिए खुदावंद से उसको तसल्ली भी है। और यही तो अहम तरीन बात है कि जबूर नवीस इस जबूर में खुदा को पुकारता है। और आपने देखा होगा कि अक्सर जो मज़ामीर हैं, इन मज़ामीर में खुदा को पुकारा गया, एक बार नहीं, बार बार। ए खुदा, मैं तुझे पुकारता हूं, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूं, खुदावंद मैं अपनी आवाज बुलंद करता हूं। अक्सर औकात मज़ामीर में आप इन बातों को देखेंगे कि जबूर नवीस खुदा की स्ताइश के लिए दुआ में और शुक्रगुजारी में खुदा को पुकारते हैं। और आसफ भी यही कहता है कि मुश्किल वक्त में वो खुदा को पुकारता है, दुआ करता है, लेकिन जवाब, उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। याद रहे कि हम गुजरे कल जैसे सीख चुके हैं, 7 और 8 और 9 आयात तफसीर नहीं, लेकिन यहां पर वो खुदा से ये कह रहा है, यानी एक लिहाज से अपनी दुआ में ये कह रहा है, क्या खुदावंद हमेशा के लिए छोड़ देगा? सवाल करता है। दूसरा सवाल, क्या वो फिर कभी मेहरबान ना होगा? अपने दुख में, अपनी मुश्किल में, अपने हालात को देखता, सिचुएशंस को देखता, दुआ करता है और कहता है, क्या खुदा मेहरबान नहीं होगा, सुनेगा नहीं? यहां पर क्लियरली वो कहता है, क्या खुदा हमेशा के लिए छोड़ देगा? क्या फिर कभी मेहरबान ना होगा? क्या उसकी शफकत अब जाती रही है हमेशा के लिए? क्या उसका वादा अबद तक बातिल हो गया? क्या खुदा करम करना भूल गया? क्या उसने कहर से अपनी रहमत रोक ली है? आप अंदाजा कीजिए कि यूं लगता है जैसे आसफ अपनी मुश्किल में, जो कोई भी उसकी मुश्किल थी, प्रॉब्लम थी, वो खुदा को पुकारता है, खुदा के हुजूर दुआ करता है, लेकिन जवाब आने में देर लग जाती है। और फिर वो अपने थॉट्स, अपने ख्यालों में, दुआ में ये कहता है, क्या खुदा भूल गया? क्या उसकी शफकत जाती रही? क्या खुदा अपने कहर को अब मौकूफ नहीं करेगा?
क्या खुदा मेहरबान और रहीम नहीं है? उसके जहन में कई ऐसे सवाल पैदा होते हैं। ईमानदारों, जब मैं खुदा के कलाम का मुतालिया करता हूं तो मुकद्दस पौलुस, जिसको हम रसूल आजम के तौर पर भी देखते हैं, वो इस कदर अजीम रसूल है कि मसीह के बाद सबसे ज्यादा दुख उठाने वाला यही शख्स था। पहले दुख देने वाला था, लेकिन जब उसकी जिंदगी बदल गई, काया पलट गई, इंजन खुदा ने नया रखा उसके अंदर, ओवरऑल हो गया, तो उसके बाद मसीह की खातिर दुख सहने लगा। और उसको भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं मालूम क्या थी, मैं इस पर जोर नहीं देना चाहता। और उसने भी खुदा के हुजूर दुआ की और शायद 3 बार उसने खुदा को पुकारा, मगर जवाब आने में देर थी। और जब जवाब आया तो जवाब यह था कि यह कांटा सा तो इसी तरह रहेगा, लेकिन इसकी चुभन के दौरान मेरा फजल तुम्हें संभाले रहेगा, तुम्हारे लिए काफी होगा। और मैं आपको यह बात भी बताना चाहता हूं कि हम भी अक्सर औकात आसफ की तरह की सिचुएशन में और पौलुस की तरह के हालात में होते हैं। आसफ बड़ी बेताबी से खुदा के हुजूर दुआ करता है, जैसा कि हम पिछली आयात में देख चुके हैं, लेकिन अभी तक जवाब नहीं। और फिर वह सवाल करता है खुदा से कि क्या खुदा ने छोड़ तो नहीं दिया? क्या खुदा छोड़ देगा? मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जरा थोड़ी देर के लिए हम हॉनेस्ट और दयानतदार हो जाएं खुदा के हुजूर। यूं तो जिंदगी भर दयानतदारी की जरूरत है, हॉनेस्टी की जरूरत है, लेकिन खुदा के लोग होते हुए हम अपनी जिंदगी की बाबत देखें कि जितने भी खुदा के मुकद्दसीन इस जमीन पर रहे, उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स, मसाइल और दुख, मुश्किलात और आंसू और टेंशन और डिप्रेशंस रहे, और वो खुदा के हुजूर पुकारते रहे, ऐ खुदा हम पर रहम कर, मेहरबानी कर। मैंने पौलुस की आपकी खिदमत में सिर्फ एक मिसाल दी। मसीही तारीख ऐसी बेशुमार गवाहियों से भरी पड़ी है। खुदा के लोग, खुदा के मुकद्दसीन ऐसे ही है कि उनकी जिंदगी में बाज औकात सवालिया निशान होता है कि ऐसा क्यों? क्या खुदा का वजूद है? कहीं खुदा भूल तो नहीं गया? क्या रीजन है कि खुदा मेरी दुआ का जवाब नहीं देता? क्या रीजन है कि वो फुल स्टॉप लग गया है मेरी दुआ में? और रूह में हम एक आवाज बाज औकात सुन रहे होते हैं कि मैंने तेरी दुआ सुन ली है। यह नहीं कि मैंने सुनी नहीं है, मैं बहरा नहीं हूं, मेरे कान हैं, मैं सुनता हूं। मैंने तेरी दुआ को सुन लिया है, लेकिन जवाब देना यह मेरा काम है कि मैं कैसे दुआ जवाब दूं और कब दूं। और कई खुदा के लोग महीनों यानी हफ्तों और महीनों और सालों तक इस टाइम पीरियड से दो चार होते हैं कि ना मालूम मेरी दुआ कब सुनी जाएगी। लेकिन वो दुआ करने और खुदा पर भरोसा करने से बाज नहीं आते। वो कंटिन्यूली मुसलसल खुदा से बात करते रहते, बोलते रहते हैं। बाज़ औक़ात अंदर से आवाज आती है कि पता नहीं मेरी दुआ क्यों
जवाब के तौर पर मुझे मिलती नहीं है? क्या रीजन है कि मेरा जवाब मेरी दुआ का नहीं मिल रहा? एक अरसा लग जाता है। और हम जितने भी हैं, हम भले दूसरों के सामने जो भी कहें, लेकिन अपने आप में हम जानते हैं कि बाज़ औक़ात इंसान है ना, भले जितना ही बड़े सेंट यानी मुकद्दस लोग हों, तो भी हम अपनी जिंदगी में बाज़ औक़ात आंसू बहाते, अश्क बहाते और रोते हैं, ऐ खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं अपने बारे में कह सकता हूं, जिंदगी में आज तक जब से मसीह को पाया, आज तक अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन्स है। मैं दुआ करता हूं, मैं खुदा को पुकारता हूं, शुक्रगुजार भी हूं, लेकिन मुझे एक ही आवाज आती है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। और हर खुदा का बंदा और हर खुदा की बंदी दयानतदारी से यह कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसे ही होता है। आसफ की जिंदगी में यह एक बेताबी सी थी, वो दुआ करता था लेकिन जवाब नहीं आ पा रहा था। अगर आपके जहन में भी ऐसे ही सवाल नहीं है जैसे सवाल 7, 8, 9 आयात में आसफ ने किए हैं, अगर आपकी जिंदगी में ये सवाल नहीं, कौन से वाले कि क्या खुदा ने हमेशा के लिए छोड़ दिया? क्या वो मेहरबान नहीं होगा? क्या उसकी शफकत जाती रही है? क्या उसके वादे बातिल हैं? क्या वो अपने कहर को रोकेगा नहीं? क्या वो मुझे भूल गया? अगर आपकी जिंदगी में ऐसे सवाल नहीं, तो खुदा का शुक्र अदा करें, वरना ये वो फुट प्रिंट्स हैं, नक्शे पा हैं मुकद्दसों के, जिनके मुताबिक मुझे और आपको आगे बढ़ते चले जाना है। और खुदा के लोग हों और उनकी जिंदगी कंफर्ट जोन हो, मुकम्मल तौर पर आसाइश खाना, नामुमकिन है। इट्स इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। मगर इस सारी मायूसी जो आसफ को थी और मुश्किल हालात, इन तमाम में उसका भरोसा खुदा पर कंटिन्यूली रहा है। आयत 10, फिर मैंने कहा यह मेरी ही कमजोरी है। यह सब कुछ सवाल करने के बाद जो उसने किए हैं, आ रही है समझना अब आपको? वो 10वीं आयत में कहता है, खुदा के वादे अटल हैं, वो भूला नहीं है, वो मेहरबान है, वो छोड़ेगा नहीं, उसका कहर दायमी नहीं है। वो कहता है कि जब मैं इस बात को समझ गया तो मैंने कहा कि ये मेरी ही कमजोरी है। एक लिहाज से वो कन्फेस करता है, इकरार करता है कि ये खुदा का कसूर नहीं है, कि ये मेरी अपनी कमजोरी है, कि जिस सबब से मैं खुदा से ये सवाल करता हूं। वैसे हमारा हक नहीं कि हम खुदा से सवाल करें। हां, हम बच्चे होते हुए, फर्जंद होते हुए खुदा बाप से बाज़ औक़ात हम शख्सी दुआ में गिले भी करते हैं, लड़ते भी हैं। जैसे हमारे बच्चे हमसे लड़ते हैं, कभी कभी मीठी मीठी लड़ाई, हम खुदा से भी कहते हैं, खुदा बाप आप ऐसा क्यों? खुदा बाप क्यों नहीं? मुझे ये दे, मेरी मर्जी, आपकी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं। और हम खुदा के साथ मीठी मीठी लड़ाई करते हैं, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है और हमारा हक है कि खुदा बाप के हुजूर हम उससे वैसे ही बात करें जैसे फिजिकल बाप से हम करते हैं, लेकिन उसकी कुद्दूसियत को हम बालाए ताक न रखें, उसको मलहूज़े खातिर रखें। और उसने कहा ये मेरी ही कमजोरी है,
मैं तो हक ताला की कुदरत के जमाना को याद करूंगा, मैं तो हक ताला की कुदरत के जमाना को याद करूंगा। याद उसे किया जाता है उस वाक़े को या उस शख्स को या उस बात को जो ऑलरेडी हो चुकी है, जो गुजर चुका है। माज़ी रफ्ता में, खा वो माज़ी करीब में हुआ या माज़ी रफ्ता में, और फिर एकदम आसिफ का ईमान पंप करता है, स्प्रिंग अप, और फिर वो कहता है हां नहीं 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 नहीं, ये मेरी ही कमजोरी है। मैं तो हक ताला के, यानी वो जो ऑलमाइटी गॉड है, उसकी कुदरत के, उसके बड़े बड़े कामों को जो जमाना में उसने किए, माजी में किए, मैं उनको याद करूंगा। और इसराइल के माजी में खुदा ने क्या क्या काम किए बताने की जरूरत नहीं है। आप अगर खुदा के कलाम को खोलते रहते हैं तो आपको मालूम है कि खुदा ने कैसे कनान से मिस्र और मिस्र से वापस सरजमीन माऊद तक लाने में खुदा ने कितने मोजज़ात किए। इनको यहां पर वक्त इजाजत नहीं देता कि बयान किया जाए, लेकिन आसफ के ज़हन में वो सब कुछ था। उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं गिला क्यों करूं खुदा को, मैं याद करूंगा खुदा के उन बड़े बड़े कामों को जो उसने किए हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब मेरी जिंदगी में और जब आपकी जिंदगी में जरा ईमान के एतबार से डहलवान सी हो, स्लोप सी हो, लगे कि पता नहीं क्या हो रहा है, उस वक्त अपने आप से यह कहना है नहीं, मैं खुदा की कुदरत को याद करूंगा। माजी में खुदा ने कैसे मुझे संभाला, यहां तक लेकर आया है, मेरे लिए मुहैया किया है, मुझे और मेरे घराने को संभाला है। हर तरह की बरकत को याद करें ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। और वो हमें कहता है, हमें याद दिलाता है कि मुझे और आपको भी ये याद करने की जरूरत है। 10 से 12 आयात को अगर हम पढ़ते हैं, 11वीं आयत, फिर वो कहता है मैं खुदावंद के कामों का क्या करूंगा जी? जिक्र करूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि मैं दूसरे लोगों को खुदा के कामों के बारे में बताऊंगा, मैं याद करूंगा खुदा ने कितने कितने बड़े काम किए, अचंभे, चमत्कार और मोजज़ात, और फिर मैं उन कामों का दूसरों से बयान करूंगा, गवाही दूंगा, ऐलान करूंगा, दूसरों को तालीम दूंगा कि खुदा कितना मेहरबान है। मैं ये जो खिदमत खुदा ने मुझे दी है, ये इसीलिए दी है, ये नेमतें खुदा ने मुझे इसीलिए दी। और अगर मैं दिलेरी के साथ दिल से बोलता हूं, आप भी बोलते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपनी बात करता हूं, तो इसके पीछे एक ही बात है कि खुदा के बड़े बड़े और अजीब काम जो माजी रफ्ता में हुए हैं, मुझे वो याद है। कैसे मुझे मिस्र से उसने निकाला और कैसे वो रूहानी तौर पर गुनाहों की गुलामी से निकालकर उस रूहानी कनान में लेकर आया है। ये फिजिकली मैं बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर खुदा ने हर एक बरकत से रूहानी तौर पर नवाजा हुआ है। और फिर आयत 11, मैं खुदावंद के कामों का जिक्र करूंगा क्योंकि मुझे तेरे कदीम अजायब याद आएंगे। वो माजी के काम जो खुदावंद तूने किए हैं, मुझे वो कदीम काम याद आएंगे। और फिर आयत 12, मैं तेरी सारी सन्नत, दस्तकारी, कारीगरी,
ये बाज़ औक़ात एक लफ्ज़ हम जब पढ़ते हैं बाइबल मुक़द्दस में तो हम कारागरी पढ़ते हैं। ये लफ्ज़ गलत है, कारागरी नहीं होता, कारीगरी होता है। कारीगर से कारीगरी होता है, ये कारागरी नहीं है। एनी हाउ, यहां पर वो कारीगरी का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन सन्नत के माना के एतबार से मैं बता रहा हूं क्या कि मैं तेरी सारी सन्नत पर, कारीगरी पर, तेरी कुदरत पर ध्यान दूंगा। कंसंट्रेट, फोकस, कि तूने क्या कुछ किया है और तेरे कामों को सोचूंगा, मेडिटेट करूंगा, उन पर ध्यान दूंगा। ये देखिए 10, 11 और 12 आयात में वो क्या कहता है? मैं याद करूंगा, मैं जिक्र करूंगा, मुझे उसके अजीब काम याद आएंगे, मैं उन पर ध्यान दूंगा और मैं उन पर सोचूंगा। है कोई होमवर्क मेरे लिए और आपके लिए इन 2-3 आयात में? है कि नहीं? ऑफ कोर्स है। देखिए वो कहता है मैं खुदा की कुदरत के जमाना को याद करूंगा, नंबर 2 मैं खुदा के कामों का जिक्र करूंगा, नंबर 3 कदीम अजायब याद आएंगे, नंबर 4 सन्नत पर ध्यान करूंगा और नंबर 5 उसके कामों को सोचूंगा जो उसने माजी में काम किए हैं, गौर खोज करूंगा। और अभी बात आगे बढ़ रही है, लेकिन इन बकिया आयात में बात कुछ और है। हमारे लिए ये सबक है, और वो ये कि जो हम इन ऊपर वाली आयात में देखते हैं कि खुदा की कुदरत, खुदा की सन्नत, खुदा के अजीब काम, उनका दूसरों से हम जिक्र करें, उन पर ध्यान दें, उन पर सोचें कि जो खुदा माजी के सालों में मेरे साथ वफादार रहा, क्या अब वो मुझे यतीम छोड़ेगा? नेवर एवर। और अगर कोई सख्ती, सर्दी, गर्मी, उतार चढ़ाव जिंदगी में हुआ भी, तो वो मेरी इस्लाह, मेरी तंबीह, मेरी तरबियत और मेरी बेहतरी के लिए होगा। इन बातों को इस तौर पर पॉजिटिवली, मुस्बत पहलू के एतबार से लेना है। अब आयत 13, 14 और 15। आयत 13 में वो कहता है, ऐ खुदा तेरी राह मकदस में है। ये कौन से मकदस की बात है? मुझे नहीं मालूम कि वो खैमाए इज्तिमा के बारे में बात कर रहा था या हैकल के बारे में बात कर रहा था, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, खुदा की जमात में खुदा की हजूरी की वो बात कर रहा था। ऐ खुदा तेरी हजूरी, मैं तेरे मकदस में, यानी तेरी हजूरी में, जहां खुदा की हजूरी है वही खुदा का मकदस है। पौलुस रसूल याद करवाते हैं कि तुम खुदा का मकदस हो, बशर्ते के खुदा का रूह मुझ में और आप में बसा हुआ हो, और बसने दें तो हम खुदा का मकदस है। खुदा का रूह यहां रहता है, बिल्डिंग्स और इमारतों में नहीं रहता, वो हमारे दिलों में रहता है। इसलिए हम खुदा का मकदस है। और वो यहां पर बयान कर रहा है, तेरी राह मकदस में है, यानी तेरी हजूरी वहां है। उस वक्त की बात कर रहा है, उस जमाने की, बिब्लिकल जमाने की बात कर रहा हूं। कौन सा देवता खुदा की मानिंद बड़ा है? यहोवा खुदा इस कदर अजीम और बड़ा है कि कोई और देवता उसकी मानिंद नहीं है।
इसीलिए तो यूहन्ना में यह लिखा है कि आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीला से हम निजात पाए। यह वही खुदा है जिसने एलिया के वक्त आसमान से आग बरसाई और मज़बा बसम हो गया। कोई और माबूद ऐसा नहीं कर सकता। मिस्र के फालगीर और नजूमियों ने क्या किया, लेकिन जो बाइबल का खुदा है उसने क्या किया आप जानते हैं। नबूकदनेस्सर ने खुदा के लोगों के साथ क्या किया, लेकिन वो जो जिंदा खुदा है, कोई देवता नहीं, उसने कैसे शेरों की मांद में होकर और आग की भट्टियों को गुलजार बनाकर अपने महबूब लोगों को आजाद किया है। ये बातें याद करने की हैं। वो कहता है तेरी राह मकदस में है, कौन सा देवता खुदा की मानिद बड़ा है कोई? नो, कोई भी नहीं। इवन दजून ने भी अहद के संदूक के आगे घुटने टेक दिए थे, गिर गया था, टूट गया था। आयत 14, तो वो खुदा है जो अजीब काम करता है। अजीब काम यानी जो हमारी समझ से बालातर है। मोजज़ा ऐसा काम है जो खुदा अपनी कुदरत से करता है, जो बशर नहीं कर सकता। बशर के वसीला से पॉसिबल है वो करे, लेकिन यह वो काम है जो खुदा अपनी कुदरत से करता है। अजीब काम। तू वो खुदा है जो अजीब काम करता है। तूने कौमों के दरमियान अपनी कुदरत जाहिर की, अपने अख्तियार के जरिया से। कैसे? अपने लोगों को सरजमीन माऊद में बसाने के लिए उसने गैर माबूदों के मानने वालों को वहां से खदेड़ा। कैसे? यरीहो के कले को, दीवार को गिरा दिया गया उस यहोवा के नाम से। ये बड़े बड़े मौजूजात होते हैं। और फिर आयत 15, तूने अपने ही बाजू से अपनी कौम यानी याकूब और बनी यूसुफ को फिदिया दे कर छुड़ाया है। एक बात तो यह कि वो याद करता है यहां कि तूने अपने बाजू से यानी अपनी कुदरत से। खुदा का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो बचा ना सके, और उसका कान इतना भारी नहीं कि सुन ना सके। खुदा ने अपने जोरे बाजू से, ये इस्तिलाह कई जगहों पर बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल हुई है। तूने अपने ही बाजू से अपनी कौम यानी कौम बनी इसराइल की बात हो रही है। और फिर बनी याकूब, बनी से मुराद औलाद या नस्ल या पुश्त है। बनी याकूब यानी औलादे याकूब, वो कौन थे? इसराइल, क्योंकि याकूब का दूसरा नाम इसराइल है। बनी याकूब बनी इसराइल है, और ये उनकी बात हो रही है। और बनी यूसुफ को, यूसुफ की औलाद को फिदिया देकर छुड़ाया है। और आगे लफ्ज़ है सिलाह। खुदा फिदिया अदन से लेकर देता चला आया, और फाइनली फिदिया मेरे और आपके और कुल जहान के लोगों के गुनाहों का उसने सलीबे कलवरी पर दिया है, ताकि उस फिदिया पर ईमान लाने के वसीला से हम निजात पाएं। यह आयत गोया कलवरी पर दिए गए फिदिया की तरफ भी इशारा करती हुई हमें नजर आती है। और उसके बाद लफ्ज सिला है, यानी खामोश, पास, वक्फा, और सोचो जो इससे पहले हुआ है उन कामों पर। मेरे भाई और मेरी बहन, ऐसी कौन सी बातें हैं जो खुदा ने हमारी जिंदगी में माजी में की है, और आज हमें उनको याद करने की जरूरत है। उसके अजीब काम, उसके मौजज़ात जो बहुत बड़े हैं,
जिनको हम लफ्जों की माला में परोने से आजिज हैं, उसके अजीब कामों की बाबत सोचें, दूसरों से जिक्र करें, गवाही दें, और जो जो हमारी अपनी जिंदगी में खुदा के अजीब काम हमें नजर आते हैं, उन पर सोचें, ध्यान दें, शुक्रगुजारी करें, खुदा के हुजूर दुआ करें कि मेरे ईमान को और ज्यादा मजबूत कर। खुदावन, मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। जब मैं आजमाइशों और दुखों और तकालीफ में हूं और मैं चाहूं कि मुझे यूं जवाब मिले पल भर में, और जब तेरी तरफ से अभी वक्त पूरा ना हो, तो आ खुदा मुझे सब्र करने का फजल बख्शना, ताकि मैं आपसे कोई गिला ना करूं। खुदावंद, इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत बख्शे। छोटी सी दुआ के साथ मैं अपनी आज की इस बात को मुकम्मल करूंगा। रब्बुल अफवाज, हम शुक्रगुजार हैं कि आप कादिर मुतलक हैं। आपने हमारे माजी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और आप जैसा कोई और माबूद नहीं है। आप वाहिद स्ताइश, हम्द और परस्तश के लायक हैं। मैं आपके नाम को मुबारक कहता हूं, और खुदावंद शुक्रगुजार हूं इन खूबसूरत बातों के लिए जो आज हमने सीखी है। हमें फजल बख्शिए कि आपके किए गए अजीब कामों का, और बिलखसूस कलवरी के पहाड़ पर सलीब पर जो हमारा फिदिया अदा हुआ है, हम उसको याद रखें। खुदावंद, बड़े ईमान के साथ आपके लोगों के लिए आपकी बरकत और सलामती मांगता हूं, जिंदगी और उम्र की दराजी मांगता हूं, बहाली और सेहत मांगता हूं। हर तरह की लानत को यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देता हूं, दूर हो जाए, और खुदावंद आपका नाम आपके लोगों की शुक्रगुजारी के वसीला से जलाल और इज्जत पाए। खुदावंद, हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि मसीह खुदावंद के मुबारक, जलाली और खूबसूरत तरीन नाम के वसीला से हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे जब ऊपर वाले की मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।